Hello dear students, before we start with today's lesson, it's time to take the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions to prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So dear students, please open today's written assignment. We will discuss long answer questions from chapter number 10 and chapter number 11. So our first question is, what are luminous and non-luminous objects? तो luminous और non-luminous objects क्या होते हैं? So our answer is, luminous objects are those objects that give out light. Luminous objects वो होते हैं जो light को देते हैं, जैसे कि sun and moon. Non-luminous objects are those objects that do not give out light. Non-luminous objects वो होते हैं जो light नहीं देते. Our examples are bulbs and lamps are example of luminous objects. तो bulb और lamp luminous objects की example हैं जो हमें light देते हैं. And books and pencils are examples of non-luminous objects. अब books और pencil non-luminous objects की example हैं जो हमें light नहीं देते. Now our second question is, what is force? What can force do? Force क्या होता है और force क्या कर सकता है? So force क्या होता है? Force is a push or pull that is applied on objects. तो जब हम objects के ऊपर push और pull लगाते हैं तो उस time हम force लगा रहे होते हैं. Tie a string to a toy car. If you pull at the string, the car move towards you. अगर आप टॉय कार के ऊपर एक स्ट्रिंग टाई कर दोगे और उसको अपनी तरफ पुल करोगे तो कार आपकी तरफ मूव होना स्टार्ट कर देगी. नाउ पुश अ टेबल विद प्रेशर. अब टेबल को प्रेशर लगा के पुश करो. यू कैन सी द टेबल मूव्स अवे फ्रॉम यू. तो जो टेबल है वो आपसे दूर मूव होना स्टार्ट हो जाएगा. ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो. Take a long eraser and try to twist it. This twisting is also a kind of force. अगर आप इरेजर लेके उसको ट्विस्ट करने की कोशिश करोगे तो ये ट्विस्टिंग भी एक तरह का फोर्स ही है. Thus, force can move an object, stop a moving object, change the direction of moving object and change the shape of the object. तो फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स एक ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है और एक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है और उसकी शेप को भी चेंज कर सकता है. So let's read the answer. Force is a push or pull applied on object. Force can move an object, stop a moving object, change the direction of moving object and change the shape of object. So what is force? Force is a push and pull. Or what can force do? Force can move an object, stop a moving object, change the direction of moving object and change the shape of the object. Now our third question is, in olden days which body parts were used by people to measure things? तो पुराने टाइम में लोग कौन से बॉडी पार्ट्स की हेल्प से चीज़ों को मेज़र करते थे? सो लेट्स रीड द आंसर. इन ओल्डन डेज पीपल यूज्ड टू मेज़र लेंथ्स विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स लाइक हैंड, आर्म एंड फुट. तो पुराने टाइम पे लोग लेंथ को मेज़र करने के लिए अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स यूज़ करते थे, जैसे कि हैंड, आर्म एंड फुट. तो जैसे कि जब वो अपने हैंड की हेल्प से लेंथ को मेज़र करते थे उसको बोलते थे हैंड स्पान. फुट की हेल्प से जब वो लेंथ को मेज़र करते थे उसको बोलते थे फुट स्पान. अब ये जब अपने दोनों फीट की हेल्प से मेज़र करते थे लेंथ को उसको बोलते थे स्ट्राइड और पेस. जब वो अपनी मिडिल फिंगर से लेके अपनी लिटिल फिंगर से लेके एल्बो तक का जो डिस्टेंस मेज़र करते थे लेंथ को तो उसको बोलते थे क्यूबिट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट? हाउ विल यू मेज़र इट? तो मास क्या होता है और हम इसको कैसे मेज़र कर सकते हैं? नाउ मास इज़ द अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट. मास क्या होता है? कितना अमाउंट मटेरियल का प्रेजेंट है एक ऑब्जेक्ट में. अ वेइंग बैलेंस एंड वेट्स आर यूज्ड टू वे ऑब्जेक्ट्स. तो मास को मेज़र कैसे कर सकते हो? वेइंग बैलेंस की हेल्प से या फिर वेट्स की हेल्प से. इस तरह से अगर आप वेइंग बैलेंस और वेट को लोगे तो आप मेज़र कर सकते हो मास को. तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे द पम्पकिन इज़ हैवियर देन द बैलून बिकॉज बैलून एंड पम्पकिन हैव डिफरेंट मास. अब पम्पकिन बैलून से ज़्यादा हैवी होता है क्योंकि उनका मास डिफरेंट होता है. तो मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट. तो जैसे पम्पकिन है वो अंदर से भरा हुआ है, उसमें मटेरियल है, इसलिए पम्पकिन ज़्यादा हैवी है और उसका मास भी ज़्यादा है. अब इसके कंपैरिजन अगर हम बैलून को देखें तो बैलून अंदर से हॉलो होता है, इसमें मटेरियल नहीं होता, इसलिए ये लाइट होता है. तो इस तरह से मास का ये डिफरेंस है. सो दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट.